اسی رات میں نے رخت سفر باندھا اور لدھیانے روانہ ہو گیا۔ صبح مجھے اچانک موجود پا کر پرکاش مجھ سے بغلگیر ہوا۔ اس نے بڑے شکایت آمیز لہجے میں کہا، یار اتنی دیر؟ میں نے ہنستے ہنستے اسے ساری کہانی سنا دی۔ یار ایک اور دھندا مل گیا تھا، کیونکہ کرنل باجوہ اور سورن سنگھ میرے لیے بہترین دوست ثابت ہو سکتے تھے اور پرکاش کا حوالہ میرے لیے ضروری تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، واہ یار، آج یقین ہو گیا کہ تم واقعی بہت تیز ہو۔ ناشتہ میں نے اور پرکاش نے اکٹھے ہی کیا تھا۔ اس نے شرارتی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بولا، ماتا اور بابوجی تو اداس ہو گئے تھے تمہارے بغیر، اور وہ بھی۔ میں نے اس سے نظریں ملائے بغیر پوچھا، وہ کون؟ اس نے گلا کیا، اچھا جیسے تمہیں تو معلوم نہیں۔ واہ جی واہ، اتنا بڑا کام کر گئے اور ہم سے چوری؟ میں نے ہنستے ہنستے کہا، پہلی چوری کی تھی زندگی میں، وہ بھی پکڑی گئی، دت تیری کی۔ پرکاش بولا، ایک بات کہوں؟ میں نے چائے پیالی میں انڈیلتے ہوئے کہا، کہو۔ اس کا لہجہ خاصا سنجیدہ تھا۔ بولا، یہ پونم کا سبھاگیہ ہوگا اور مجھے تم اس سلسلے میں ہمدرد پاؤ گے۔ میں نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی پرکاش۔ دوپہر تک میں لمبی تان کر سوتا رہا۔ پرکاش نے میری ہدایت کے مطابق مجھے کھانے کے وقت بیدار کر دیا۔ نہا دھو کر میں نے کھانا کھایا۔ پونم کی چھٹی کا وقت ہو چلا تھا۔ میں نے اس کے کالج کا رخ کیا۔ کالج میں عین چھٹی کے وقت پہنچا۔ مجھ جیسے سینکڑوں مشتاقان دید نے پہلے ہی کالج کا گھیراؤ کر رکھا تھا۔ سائیکلوں پر سوار اور پیدل بھارتی مہیلاؤں کی ٹولیاں خیرات حسن بانٹتی، مسکراتی، ایک دوسرے سے اٹکیلیاں کرتی کالج کے دروازے سے برآمد ہوتی اور کالج کے باہر پہلے سے انتظار میں کھڑے اپنے پریتم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اپنی راہ لیتی۔ قریباً 10 منٹ کے جان لیوا انتظار کے بعد پونم لڑکیوں کے ایک جھرمٹ سے نمودار ہوئی۔ وہ اپنی ساتھیوں میں بلا شبہ ان کی ملکہ دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے وہ اس درخت کے نزدیک پہنچی جس کے نیچے میں سراپا انتظار بنا اس کا منتظر تھا، میں اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات اس کی خوبصورت آنکھوں میں لہرائے۔ اس نے سنبھلتے ہوئے میرے پرنام کے جواب میں ہاتھ جوڑ دیے، نمسکار۔ اس کے منہ سے بمشکل نکلا، آپ یہاں؟ میں نے اس کا فقرہ اچک لیا۔ واپس چلا جاؤں؟ وہ بولی، پرماتما نہ کرے، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، آپ اچانک اس طرح چلے آئیں گے۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب لفظ اپنا مفہوم کھو دیں اور کہنے کو کچھ باقی نہ رہے تو جذبوں کی خاموش زبان اظہار کا بہترین ذریعہ بن جاتی ہے۔ پونم وہ کچھ مجھے کبھی نہ کہہ پاتی جو اس کی خاموش آنکھوں نے چند لمحوں میں مجھ سے کہہ دیا۔ خود میرے جذبات بھی اس سے مختلف نہیں تھے۔ ہم دونوں قدم سے قدم ملائے نزدیکی ریسٹورانٹ کی طرف جا رہے تھے۔ اس اثنا میں سائیکل سوار اس کی دوستوں نے ہمارے نزدیک سے گزرتے ہوئے ہم پر اچھے خاصے ریمارکس بھی کسے۔ ریسٹورانٹ میں کافی پیتے ہوئے ہم دونوں زیادہ تر خاموش ہی رہے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ایک دوسرے سے کیا کہیں، کہنے کو رہ ہی کیا گیا تھا۔ پونم سے ملتے ہوئے بھی میں اپنا مشن کبھی نہیں بھولا تھا۔ مجھے علم تھا کہ بھارتی ایئر فورس کے متعلق تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ان کے مخصوص کلب اور میس ہوتے ہیں۔ بھارتی معاشرے میں خصوصاً میرے ذاتی کردار کی وجہ سے پرکاش یا پونم کے گھر میں کسی کو میرے اور اس کے اکٹھے گھومنے پر کبھی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ مخلوط تعلقات بھارتی سوسائٹی کا حصہ ہیں اور ایک ایسے نوجوان سے جو کٹر ویشنو ہو، شراب کباب سے نفرت کرے، کسی کی سپتری کا میل جول قابل اعتراض کیسے ہو سکتا تھا؟ پونم نے ہوٹل سے نکلتے ہی کہا، میرے ساتھ گھر چلیے نا۔ میں نے بہانہ بنا کر اسے ٹال دیا، شام کو کچھ کام ہے یہاں۔ اسے بس میں سوار کر کے میں واپس پرکاش کے پاس چلا آیا۔ پرکاش نے اپنے آپ کو کام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس پر دن رات امیر بننے کا خبت سوار تھا۔ قدرت نے اسے دھرم ویر کی صورت میں جو غیبی امداد بہم پہنچائی تھی وہ اس کا حق ادا کر دینا چاہتا تھا۔ اسے میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود شدت سے اس بات کا احساس تھا کہ وہ پلاسٹک کے کارخانے کا انسٹرکٹر سے مالک بنا تھا تو میرے پیسے کی وجہ سے۔ اب وہ ایک ایک پیسے کی حفاظت کر رہا تھا۔ کاریگروں کے ساتھ وہ خود بھی کام میں جتا رہتا۔ میری سیلز مین شپ کا وہ قائل تھا اور خرچ کے تمام اختیارات میں نے اسے سونپ دیے۔ کارخانہ بننے سے اس کی تمام تر سماجی سرگرمیاں معطل ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے کام پر صرف کرتا تھا۔ کبھی کبھی میں اسے زبردستی تفریح کروا دیتا، ورنہ وہ دن رات زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کے چکر میں ہی رہتا تھا۔ واپسی پر میں اسے زبردستی دفتر سے اٹھا کر اپنے ساتھ فلم دکھانے لے گیا۔ 6 بجے کے بعد فلم سے فارغ ہو کر ہم دونوں رائے کوٹ چل دیے۔ پرکاش نے ایسا بااعتماد آدمی تلاش کر لیا تھا جو میری اور اس کی غیر موجودگی میں کاروبار کی نگرانی کرتا رہے۔ میں نے تو اسے یقین دلا دیا تھا کہ میں کسی ذمہ داری کا اہل نہیں ہوں، کیونکہ میں ٹک کر بیٹھ نہیں سکتا۔ میرے لیے سب سے بہترین منصب سیلز مین شپ ہی ہے۔ دلی اور بھٹنڈا سے میں اچھا خاصا آرڈر لے آیا تھا۔ برتنوں کی کمیشن میں نے اس کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ میری ان باتوں نے اسے میرے اور نزدیک کر دیا۔ اسے اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ ضرور پچھلے جنم میں ہم دونوں بھائی تھے۔ گھر پر ماتا اور بابوجی مجھ سے یوں بغلگیر ہو کر ملے جیسے میں واقعی ان کا سگا بیٹا ہوں اور ایک لمبی جدائی کے بعد ان سے مل رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے کمال ہمدردی سے کہا، بیٹے مقامی مارکیٹ میں میرے خیال میں تمہارے لیے کافی کام موجود ہیں،
तुम इतनी मुशक्कत ना किया करो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए बाबूजी, मार्केटिंग मेरा शोबा है और मैं प्रकाश को ये मौका नहीं देना चाहता कि वो मुझे नालायक समझे। बस हम दोनों में दौड़ लग गई है, ये माल बनाता रहे, मैं उसका निकास करता रहूंगा। वो बोले, अच्छा यार तुम्हारी मर्जी, माया के लिए इतनी भाग दौड़ कुछ ठीक नहीं। मेरे जवाब पर वो कहकहा मारकर हंस दिए। बाबूजी आप ठहरे कम्युनिस्ट, मैं अभी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पेशे का तकाजा था कि मैं कभी आज की हासिल करदा मालूमात पर तकिया करके नहीं बैठ सकता था। मुझे रोजाना ताज़ा से ताज़ा मालूमात दरकार थी। हंगामी हालात होने की वजह से हवाई अड्डों पर तब्दीलियां इतनी तेजी से रूनुमा होती थी कि आज की बात अगले रोज पुरानी दिखाई देती थी। एक स्क्वाड्रन आज यहाँ मौजूद है तो अगले रोज उसकी मंजिल के मुताल्लिक कोई भी हतमी बात नहीं कही जा सकती थी। मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं नई से नई और अहम तरीन मालूमात हासिल कर सकूं, और ताज़ा मालूमात हासिल करने की बेहतरीन जगह थी फजाइया के क्लब और होटलों के डांसिंग हॉल। शनिचर की रात खूबसूरत होती थी। होटलों के डांसिंग हॉल और क्लबों में तिल धरने को जगह नहीं मिलती थी। करीबी शहरों की खूबसूरत मुस्तकबिल के ख्वाब देखने वाली भारतीय नारियां और मखसूस तबके की नौजवान लड़कियां भी उमूमन इन्हीं होटलों में ज्यादा पाई जाती थी, जहां उन अफसरान की आमद मुतवक्के रहती थी। शराब के नशे में धुत भारतीय फजाइया के अफसरान और उनकी बेगमात अक्सर डिप्रेशन से निजात पाने के लिए ऐसे क्लबों और होटलों का रुख करते जिनमें मतलब की निहायत अहम बात मौजूद होती थी। मेरी ख्वाहिश पर पूनम ने वो साड़ी खुसूसी तौर पर पहनी जो मैंने उसे पहली मुलाकात में पेश की थी। पूनम के साथ रात को मैं एक टैक्सी में बैठकर उस क्लब की तरफ जा रहा था जो अफसरान के लिए मखसूस था। मुझे अपना तो इल्म नहीं कि मैं कैसा लग रहा था, लेकिन पूनम के मुताल्लिक ये बात दावे से कह सकता था कि वो भारत की सबसे ज्यादा खूबसूरत कन्या लगती थी। जैसे ही वो मेरा हाथ थामे ऑफिसर्स क्लब में दाखिल हुई, हॉल में बैठे तमाम लोगों की नजरें उसकी समत उठी। उसे देखने वालों में मर्द भी शामिल थे और औरतें भी। हवसनाक नजरें, हासिद नजरें, रश्क भरी नजरें, सभी नजरों ने पूनम का अहाता कर लिया था। हमारे एक कोने में रखी मेज के गिर्द बैठने तक कुछ लोग गर्दनें मोड़े हमें देख रहे थे। उनकी मैली नजरें पूनम को समो लेना चाहती थी। पूनम लोगों की तरफ पीठ करके बैठ गई, बोली, मुझे तो बड़ी लाज आ रही है। मैंने मुस्कुराते हुए मेज पर रखा मेन्यू उठा लिया और मुझे मजा आ रहा है। चंद मिनट के बाद ही एक मुअद्दब बहरा हमारे सर पर मौजूद था। मैंने पूनम की ख्वाहिश पर सिर्फ कॉफी का ऑर्डर दिया। मैंने उनकी हालत इज़ार पर तबसरा करते हुए पूनम से कहा, कितने काबिल रहम हैं बेचारे, इतनी सुंदर देवी को मेरे साथ देखकर ये जलने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं। अभी बैरे ने कॉफी लाकर रखी ही थी कि डांसिंग म्यूजिक शुरू हो गया। मुख्तलिफ जोड़े उठ उठ कर डांसिंग फ्लोर की समत जा रहे थे। पूनम ने कुछ न कहा। यूं लगता था जैसे ये माहौल उसके लिए बिल्कुल अजनबी हो। हमारे साथ वाली मेज पर दो कैडेट्स, जिन्हें शायद हाल ही में कमीशन मिला था, शराब के नशे में अपनी इकलौती पार्टनर को चीख चीख कर अपने कारनामे सुना रहे थे। उन लोगों की शायद ये मुश्तरिका महबूबा थी और दोनों नशे की हालत में उनके सामने ज्यादा नंबर बनाने के चक्कर में खासी अहम नौयत की मालूमात उगल रहे थे और मैं बड़ी दिलचस्पी से उन्हें निगल रहा था। पूनम ने कई मर्तबा बेचैनी से पहलू बदल कर अपनी बेजारी का इजहार किया, लेकिन मैंने जानबूझकर उसे नजरअंदाज किए रखा। अचानक जैसे सारे हॉल को सकता हो गया, एक अजीब गरीब शख्सियत दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थी। एक लंबा तड़ंगा ऋषि अंदर दाखिल हो रहा था। शदीद सर्दी के मौसम में भी उसके जिस्म पर कपड़े की सिर्फ दो चादरें थी, एक जो उसने बांध रखी थी और दूसरी उसने अपने जिस्म के गिर्द लपेट रखी थी। ऑर्केस्ट्रा खामोश था। उसके पाँव में पहनी खड़ाओं की आवाज ही सन्नाटे को मजरूह कर रही थी, वरना तो सारे हॉल ने सांस रोक रखा था। उसने अंदर घुसते ही जोर से पुकारा, ओलख निरंजन। महाराज आ गए, भगवान आ गए, परमात्मा आ गए की मुख्तलिफ आवाजों की भिनभिनाहट सुनाई देने लगी। शराबी कैडेट जिसने सारे हॉल के साथ ही चुप साध ली थी, अचानक चिल्लाया, फ्रॉड है ये साला, एकदम फ्रॉड है। जहां जहां उसकी आवाज पहुंची, लोगों ने खूंखार नजरों से उसे घूरा। मर्दों से ज्यादा औरतें उसकी तरफ घूर रही थीं। साधु के हॉल में दाखिल होते ही लोग मुख्तलिफ कोनों से उठ उठ कर उसकी कदम बोसी करने लगे। इनमें ज्यादा तादाद उन नीम बरहना लड़कियों की थी जो खास तौर से शनिचर की रात को यहाँ आया करती थी। कैडेट की बात खत्म होते ही अचानक बार काउंटर पर बैठा एक नौजवान, जो खुद भी कोई ऑफिसर दिखाई देता था, उस तरफ बढ़ा। उसने तेजी से आगे बढ़कर उसे गिरेबान से पकड़कर झटका दिया। वो गुस्से में चिल्लाया, क्या बकते हो? शराब नोशी से उसकी आंखें दहकते हुए अंगारे दिखाई दे रही थी। रुक जाओ बालके, अचानक साधु महाराज चिल्लाया और यूं लगा जैसे दोनों पर सहर तारी हो गया हो। वो बड़े पुरवकार अंदाज में चलता उस मेज की तरफ आया। उसने हाथ उठाकर दोनों से नजरें मिलाए बगैर बड़े पुरसुकून लहजे में कहा, शांति शांति। हमलावर ने गुस्से से कुछ कहना चाहा, प्रभु इसने। साधु ने उसकी बात काटते हुए उसे वापस जाने का इशारा किया। शांत रहो बालके, इस पर क्रोध इंद्री का राज है। परमात्मा
परमात्मा इसकी रक्षा करे। उसने अचानक ऑर्केस्ट्रा की तरफ देखकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, आनंद मानो, रघुपति महाराज दयानंद जी की जय। सारे हॉल ने नारा लगाया और दूसरे ही लम्हे ऑर्केस्ट्रा हरकत में आ गया। नाचने वालों में जोश खरोश महाराज की आमद से बढ़ गया था। बड़ा हैजान खेज मंजर था। थिरकते जिस्मों का शैतानी रक्स अपने उरूज पर पहुंच चुका था। महाराज ने हस्बे आदत गर्दन झुका ली, फिर वो अचानक मुड़ा और मेरे सर पर बराजमान हो गया। पूनम ने अपने करीब पाकर उठकर उसके पांव छू लिए। मुझे भी बादिल नाखास्ता इस अमल को दोहराना पड़ा। उसने हमारे कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, कल्याण हो, कल्याण हो, और हमारे सामने बराजमान हो गया। मैंने दिल ही दिल में न जाने कितनी गालियां उसे दे डाली। उसके यहाँ आते ही मेरे करीबी मेज वालों का सिलसिला गुफ्तगू बंद तो नहीं हुआ था, अलबत्ता उसमें पहले वाली सरगर्मी बाकी नहीं रही थी, क्योंकि उनकी महबूबा भी हॉल में मौजूद दर्जनों खूबसूरत लड़कियों की तरह महाराज दयानंद स्वामी के गिर्द घेरा डाले खड़ी थी। न जाने ये कमबख्त क्या शय थी जिसे देखते ही लड़कियां ऑफिसरों की बगलों से निकलकर उसके पांव में आ बैठी थी। कोई उसके पांव दबा रही थी और कोई उसके चरणों में बैठी थी। मेरे सामने तस्वीर के दो रुख थे। इंडियन इंटेलिजेंस को भी बखूबी इस बात का इल्म था कि ऐसी जगहों का रुख गैर मुल्की जासूस जरूर करते हैं। इसके अलावा भी वो लोग अपने शराबी और बदकिरदार अफसरान को अपने ज़ेर निगरानी रखते थे और ऐसे मकामात पर जरूर मौजूद रहते थे। स्वामी दयानंद को देखते ही न जाने क्यों मेरे दिल से एक ही आवाज उठ रही थी, इसका ताल्लुक जरूर इंटेलिजेंस से है। अब इसकी अपने नजदीक तशरीफ आवरी को भी मैंने कोई अच्छा शगुन नहीं जाना था। खूबसूरत औरतों का उसके गिरदा गिर्द जमघट्टा देखकर मुझे ये अंदाजा तो हो चला था कि वो किसी किस्म का भगवान है। ऐसे परमात्मा का पूनम जैसी खूबसूरत कन्या के नजदीक बराजमान होना भी समझ में आ सकता था, लेकिन ये बात मेरे पेश नजर थी कि मैं पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ और वो भी एक खूबसूरत लड़की के साथ। इन हालात में भारतीय इंटेलिजेंस का मुझे चेक न करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। स्वामी दयानंद की आमद मेरी मेज पर मामूल के मुताबिक हरगिज नहीं थी। मुझे इसका बखूबी एहसास था। मैं भी मोहतात होकर बैठ रहा, खुद को उससे लाताल्लुक जाहिर करके खामखा मुसीबत को दावत देना नहीं चाहता था। मैं भी उस पर मिटा जा रहा था और उसकी अपने पास आमद को सौभाग्य गर्दान रहा था। मेरी शदीद ख्वाहिश पर महाराज ने मेरी तरफ से सोमरस पीना कबूल कर लिया था। हॉल में मौजूद खासे लोग तो पहले ही पूनम की वजह से मुझसे हसद कर रहे थे। अब महाराज की आमद ने मुझे उनकी नजरों में गैर मामूली अहमियत दिला दी थी। जितनी देर महाराज बैठे रहे उन्होंने बमुश्किल चंद बातें ही अपनी तरफ से की थी, वरना तो वो ज्यादातर लोगों की बातों का जवाब ही देते रहे थे। मुख्तलिफ औरतें बारी बारी उनके चरणों में बैठ जाती। स्वामी जी अपनी तपस्या में गर्क हो जाते और अचानक झुककर कोई बात उसके कान में कह देते। औरत बात सुनकर उठती, उनकी कदम बोसी करती और उल्टे पांव अपनी कुर्सी पर वापस चली जाती। उसने अचानक मेरी तरफ नजरें उठाई। तुम बहुत खुशकिस्मत हो बालिके। एक लम्हे को तो मुझे जबरदस्त ज़हनी झटका लगा। जरूर उसकी नजरों में कोई मकनातीसी कुव्वत पोशीदा थी, लेकिन अपनी कुव्वत इरादी को बुरुए कार लाते हुए दूसरे ही लम्हे मैंने अपनी हालत पर काबू पा लिया। वो बोला, सुंदरी को साथ लेकर हमारे आश्रम में आना, महागुरु तुम्हें अपने दर्शन देंगे। उसने फिक्रा मुकम्मल करते ही नजरें झुका ली। पूनम ने नजरें झुकाए हुए कहा, हमारे सौभाग्य महाराज, हम सर के बल आएंगे। ऑर्केस्ट्रा थोड़ी देर के लिए रुक गया। महाराज भाषण देने वाले थे। फिर स्वामी जी का भाषण शुरू हुआ। भाषण क्या था? लग़वियात का मजमुआ था। वो अपने पुजारियों को जिनसी आजादी का सबक दे रहा था और शरीर को फना करके आत्मा की आजादी का रास्पुटीन फार्मूला रामायण और गीता के मुख्तलिफ श्लोकों की मदद से सुना रहा था। जैसे ही उसका भाषण खत्म हुआ, लोग फिर सजदे में गिर गए और स्वामी दयानंद महाराज शांति और कल्याण का राग अलापते वहां से पधार गए। उनके जाते ही नई मुसीबत आ गई। अब लोग हमारे गिर्द इकट्ठे होकर हमें बधाई दे रहे थे, क्योंकि महाराज हम पर खास तौर पर दयाल हुए थे। उनके ख्याल में हम दोनों में से किसी में जरूर कोई गुप्त शक्ति समाई थी जिसने महाराज को खास तौर से हमारी तरफ मुतवज्जे किया था। जब पढ़े लिखे हिंदू तबके का ये हाल था तो अनपढ़ अवाम के नजरियात का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। मैंने दिल ही दिल में उनकी ज़हनी पस्ती पर लानत भेजी और उन कैडेट्स की तरफ मुतवज्जे हो गया जो स्वामी के जाते ही अपनी मुश्तरका महबूबा को गालियां देने लगे थे, जिसने महाराज को देखते ही तोते की तरह उनसे आंखें फेर ली थी। बोला, फ्रॉड है साला, एकदम फ्रॉड, मैं इसे खूब जानता हूँ। अभी उसका लेक्चर जारी था कि अचानक 2-3 नौजवान मुख्तलिफ मेजों से उठे और उस पर पिल पड़े। अपने साथी को पिटता देखकर उसका दोस्त भी मुकाबले पर उतर आया और वहां वो धमा चौकड़ी मची के खुदा की पनाह। मैं पूनम का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया। रात के करीबन 12 बज रहे थे। क्लब के बाहर 2-3 खाली टैक्सियां खड़ी थीं। हम घर रवाना हो गए। पूनम और मैं दोनों अपने आप को इस बदशगुनी का बायस जान रहे थे। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम्हें तो बोर ही किया यहाँ लाकर। वो बोली, अरे नहीं तो, मैं तो खुद शर्मिंदा
शर्मिंदा हो रही थी कि शायद मेरी वजह से। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए फिक्रा मुकम्मल कर दिया, तुम्हारी वजह से एक क्लब तो क्या, 2 मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ सकती है। उसके शर्मा जाने की अदा पर बेख्तियार मर मिटने को जी चाहा। घर पहुंचने तक हम दोनों एक दूसरे में खोए रहे। मेरे जाने का मकसद काफी हद तक हल हो चुका था। मुझे वहां मुख्तलिफ लोगों के आपस में बहस मुबाहसे से कुछ नई बातों का इल्म हुआ था, जो कहने वालों की नजरों में तो कोई अहमियत न रखती थी, लेकिन उनकी मेरे मुल्क के नजदीक क्या अहमियत होगी इसका अंदाजा मैं बखूबी लगा सकता था। पूनम के कुर्ब का एहसास इतना सरूर अंगेज था कि मैं शायद उस कैफियत को बयान न कर पाता। वापसी पर नहर के करीब से टैक्सी गुजरी तो मैं चौंक उठा। ये नहर हवाई अड्डे के करीब से गुजरती थी और शायद हिफाजती इक़दामात की गरज से वहाँ आर्मी डिप्लॉय हो रही थी। सारी रात मेरे जहन में नहर और उसके इर्द गिर्द का इलाका घूमता रहा। हवाई अड्डे के गिर्दा गिर्द ऐसे दिफाई हिसार का इल्म जरूरी था। मुझे बेचैनी से सुबह का इंतजार था ताकि इस सिलसिले में कोई लाएअमल तरतीब दे सकूं। अगले रोज छुट्टी थी। सुबह मेरी तजवीज पर सब ने नहर के किनारे पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बना लिया। अलसुब मैंने माता जी को ये तजवीज पेश कर दी थी। वो तो सुनते ही खिल उठी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम्हें तो भगवान ने मेरे लिए अवतार बनाकर भेजा है। जल पूजा तो हमारा धर्म है, लेकिन प्रकाश के बाबूजी न जाने किस मिट्टी के बने हैं। पिछले साल भर से मुझे नहर का मुंह देखने नहीं दिया। मेरा मकसद सिर्फ यही नहीं था कि इन लोगों की मौजूदगी में मुझे वहाँ काम करने का मौका मिल जाए, बल्कि मैं ये चाहता था कि मेरी मौजूदगी में वो लोग इतने मसरूफ रहें कि उन्हें मेरे बारे में सोचने की फुर्सत न रहे। जिंदगी से अपने हिस्से की मुसर्रतें हासिल करना हर इंसान का फर्ज है, लेकिन वक्त ने कभी उन्हें इतनी मोहलत न दी थी कि बाबूजी उन्हें इस तरह घुमा फिरा कर लाते। एक अरसे से माता जी उन्हें वैष्णो यात्रा के लिए कह रही थी, लेकिन वो हर मर्तबा बात गोल कर जाते। सिर्फ इसलिए नहीं कि बकौल उनके उन्हें ऐसी फजूलियात से नफरत थी, बल्कि इसका बड़ा सबब पैसे का न होना था। अब उनके लिए जहाँ एक बाइज्जत जिंदगी गुजारने के मौके मुयस्सर थे, वहाँ उन्हें मुझ जैसा धर्म पुत्र भी मिल गया था, जो जबरदस्ती उनकी झोली में उनके हिस्से की खुशियाँ डाल रहा था। जब कभी मैं उन लोगों को फिल्म या किसी दूसरे तफरीही प्रोग्राम की तजवीज पेश करता तो बाबूजी जज्बाती हो जाते। मुझे उस बूढ़े कम्युनिस्ट पर बड़ा रहम आता और इस बात का यकीन होने लगता कि कुदरत ने बिला वजह मुझे उन लोगों से नहीं टकराया। शायद अब खुदा को उन्हें कुछ सुख देना ही मकसूद था। मेरे शदीद इसरार पर मौसी जी भी हमारे साथ जा रही थी। एक मकामी टेम्पो पर बैठकर वो लोग नहर की तरफ चल दिए। नहर के किनारे पर एक जगह लोगों ने तालाब की शक्ल देकर वहाँ एक मूर्ति खड़ी कर रखी थी। मूर्ति होगी तो मंदिर भी होगा और मंदिर बनेगा तो पूजा भी होगी। पूजा के लिए हिंदू लोगों के कोई खास देवता मखसूस नहीं, एक चूंटी से लेकर पहाड़ तक की पूजा करते हैं। क्योंकि तमाम दरिया कैलाश पर्वत से निकलते हैं, इसलिए उनमें से निकलने वाले नदी नाले भी काबिल परस्तिश हैं। नहर के मुताल्लिक तो उन्हें इल्म था कि ये गंगा जल है, इसलिए यहाँ कुछ ज्यादा ही सरगर्मी देखने में आती थी। नहर के किनारे के साथ साथ पक्की सड़क बनी थी, जिस पर से गुजर कर लोग माता मंदिर को जाते थे। मामला चूंकि पूजा का था, इसलिए इंडियन आर्मी वो सड़क बंद न करने पर मजबूर थी। ये अलग बात कि उन्होंने वहाँ अपनी सिक्योरिटी खासी फैला दी थी, बल्कि हाल ही में पाकिस्तानी जासूस भी इस इलाके से गिरफ्तार हुआ था। अखबारात के मुताबिक वो जासूस पिकनिक मनाने वालों की आड़ में फोटोग्राफी कर रहा था, और उस जासूस की गिरफ्तारी के बाद तो इंतजामात और भी सख्त हो गए थे। बाकी तमाम लोग तो टेम्पू पर चले गए, जबकि मैं और प्रकाश मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, क्योंकि हमें बाजार से कुछ फ्रूट भी खरीद कर ले जाना था। नहर के करीब पहुंचते ही मोटरसाइकिल प्रोग्राम के मुताबिक झटके खाने लगी। प्रकाश ने परेशानी से पूछा, क्या हुआ? मैंने गर्दन मोड़कर जवाब दिया, प्लग कचरा, पेट्रोल में मिलावट या कोई और घपला है। प्रकाश बोला, यार न जाने ये मुसीबत क्यों पाल रखी है बाबूजी ने। मैंने कहा, काश तुमने भी कोई मुसीबत पाली होती। मैंने इस अंदाज से कहा कि वो बेइख्तियार हंस पड़ा। नहर की सड़क पर कुछ दूर तो मोटरसाइकिल चलती रही। जैसे ही एक आर्मी यूनिट के नजदीक पहुंचे वो अचानक बंद हो गई। प्रकाश परेशानी से बोला, कहाँ मरवा दिया साली ने, यार इसमें तो प्लग पाना भी नहीं है। मैंने उसे फ्रूट की टोकरी थमा दी। अच्छा कुछ करते हैं। हम मोटरसाइकिल घसीटते हुए एक एंटी क्राफ्ट गन के नजदीक पहुंच गए, जिसे बड़े खूबसूरत तरीके से कैमोफ्लाज किया गया था। नजदीक ही एक आर्मी ट्रक खड़ा था, जिससे जवान सामान उतार रहे थे। ट्रक पर लगे बटालियन मार्क पर भी लेपापोती कर दी गई थी, लेकिन उसका कुछ हिस्सा अभी तक नुमाया था, जिसका इल्म होना बहुत जरूरी था। सब लोग हैरानी से हमारी संप देख रहे थे। हमने करीब पहुंचते ही उन्हें प्रणाम किया, जय हिंद। 2-3 जवान बोले, जय हिंद। मैंने कहा, सर क्षमा कीजिए आपको डिस्टर्ब किया, एक मुश्किल पेश आ गई थी। मैंने सारा फिक्रा अंग्रेजी में बोलकर उस मेजर पर अपनी अहमियत जतला दी थी, जो उन सब में सीनियर नजर आ रहा था। उसने फराख दिली से कहा, कोई बात नहीं, ऑल राइट।
चंद मिनट के बाद ही अपनी फ्रूट वाली आधी टोकरी खाली करवाने के बाद हम उनके एक लांस नायक से प्लग खुलवा कर साफ करवा चुके थे। उसने बड़ी मुश्किल से एक ऐसी चाबी निकाली थी जिससे हमारी मोटरसाइकिल का प्लग खुला और मोटरसाइकिल भी खुद ही स्टार्ट करके हमारे हवाले की थी। जाते हुए एक मर्तबा फिर हमने जय हिंद का नारा लगाया और वहां से चल पड़े। तमाम जुज़ियात मेरे जहन में नक्श हो चुकी थी। प्रकाश ने मोटरसाइकिल के चलते ही एक मोटी सी गाली उन्हें दी और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगा, बाप का माल समझ रखा है, वीर जी इन्हें कुछ देने से बेहतर था आप उसे दरिया में फेंक देते। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, यार अपनी सेना से मोहब्बत करना सीखो। जवाब में उसने सेना को 2-3 गालियों से नवाज दिया। ये बात मैंने अक्सर महसूस की थी कि बहुत कम लोग भारत में अपनी फौज से मोहब्बत करते थे, ज्यादातर उन्हें गासिब और अय्याश ही करार देते थे। यूं तो भारतीय हुकूमत अपने जमहूरी होने का दावा करते नहीं थकती, लेकिन सिविलियन मुलाजिम के मुकाबले में फौज को बेपनाह सहूलतें हासिल थीं। यही वजह है कि भारत का पढ़ा लिखा तबका फौज को नापसंद करता था। उन दिनों अभी 71 की जंग शुरू नहीं हुई थी और अवाम 62 में चीन और 65 में पाकिस्तान के हाथों अपनी फौज की दुर्गत का तमाशा देख चुके थे। प्रकाश ने उन पर तंज करते हुए कहा, मुझे 10 पटाखे दे दो, अभी सबको भगा दूंगा। मैंने उसे इस मौजू पर मजीद छेड़ना मुनासिब न समझा, लेकिन दिल ही दिल में मुझे इस बात से बेहद खुशी हुई कि उसे इस फौज से नफरत है। मैं तो उसे पिकनिक ही कहूंगा, क्योंकि सिवाय बूढ़ों के और कोई तालाब के नजदीक भी नहीं भटकता था। काफी लोग यहाँ पहले से मौजूद थे। नहर के किनारे बने हुए मुख्तलिफ बागात के हर महफूज कोने में कोई न कोई किसी न किसी को अपने साथ चिमटाए बैठा था। बाबूजी के कुछ वाकिफ लोग मिल गए थे जो आपस में मुल्की हालात पर बहस कर रहे थे। चूंकि उनका ताल्लुक कम्युनिस्ट पार्टी से था, इसलिए उनकी बातें भी हुकूमत के खिलाफ थीं। उन दिनों कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम चला रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।